Hello students, welcome in your social science class. As you know that we were reading lesson 18, Union Government and its first organ, the legislature. Okay, in the previous lectures we discussed about the structure of Union Government, organ of the Union Government, legislature, the executive and the judiciary. In the previous lecture we also discussed about the three lists, union list, state list and concurrent list, and we also discussed about the two house of the union government, first Lok Sabha and second Rajya Sabha. We had already discussed about Rajya Sabha. Today in this lecture we are going to discuss about Rajya Sabha. As you know that Lok Sabha is a lower house and it is called the House of People. On the other hand, Rajya Sabha is called the upper house and it is called the House of State. Rajya Sabha is called the represent the states of India. So, first of all we will discuss about the strength of Rajya Sabha. The maximum strength of Rajya Sabha is 250. Out of these, 12 members are nominated by President of India and the remaining 238 are elected from the states and union territories by the elected member of State Legislative Assembly. I want to make sure that the member of Lok Sabha are elected by the people. On the other hand, the member of Rajya Sabha are not elected by the people directly. The member of Rajya Sabha are elected by the state legislative assemblies and 12 members that are nominated by the president. The 12 nominated members are distinguished personalities, famous personality, from various fields like art, literature, science, social services and sports. Now, we will discuss about the qualification to be a member of Rajya Sabha. Who can be a member of Rajya Sabha? First, as like Lok Sabha, to be a member of Lok Sabha, there should be some qualification. A person who has some qualification the person who wanted to be a member of Lok Sabha, the person or candidate must have the following qualification. Same like the person who wanted to be a member of Rajya Sabha must have some qualification. First, he must be a citizen of India. First qualification. Second, he must be a citizen of India. And he must have completed the age of 30 years. Third point, his name must be in voter list. Fourth point, he should not be appointed on a government services and he should also possess some qualification prescribed by Parliament. Next, election and tenure. Unlike the Lok Sabha, Rajya Sabha is a permanent house. I told that Rajya Sabha is a temporary house. After every 5 years, the Lok Sabha election held every 5 years. So the normal term of the Lok Sabha is 5 years. On the other hand, Rajya Sabha is a permanent house which cannot be dissolved. After every 2 years, 1/3 of its members retire and election are held to fill these seats. Every 2 years, after 2 years, 1/3 of its members got retired and the election held only for those seats who fall vacant. जो सीट खाली हो जाती हैं उन्हीं के लिए ही फिर उनकी इलेक्शंस होते हैं. Therefore, each member of राज्य सभा, इस हिसाब से हर एक मेंबर जो राज्य सभा में जिसकी रिटायरमेंट हो जाती है वो 6 ईयर कंप्लीट कर लेता है. 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद राज्य सभा के उस मेंबर के लिए इलेक्शन होते हैं. नेक्स्ट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the ex-office chairperson of Rajya Sabha. Vice President ex-chairperson of Rajya Sabha होता है. Like the Lok Sabha Speaker, he also preside over the meeting of Rajya Sabha. Vice President
जैसे राज्यसभा लोकसभा का स्पीकर होता है, जो फंक्शनिंग लोकसभा का स्पीकर करता है वो सेम फंक्शनिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज राज्यसभा की मीटिंग प्रिसाइड करता है। और राज्यसभा की जितनी भी मीटिंग प्रिसाइड होती हैं, ठीक है, वो मीटिंग किसके द्वारा प्रिसाइड की जाती हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, आफ्टर दैट he maintained discipline and decorum of the house. Vice president is not a member of the house. On the other hand, the Lok Sabha speaker should be a member of a Lok Sabha, okay, but on the other hand, vice president is not a member of a Rajya Sabha, so he can't vote any case. किसी भी इशू पर, किसी भी केस पर वाइस प्रेसिडेंट अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता है। वेयर एज लोकसभा स्पीकर कैन, और लोकसभा का स्पीकर अपना वोट कास्ट करता है क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर होता है। राज्यसभा elects its deputy chairperson also from the amongst its member who perform the duties of chairperson in his absence. और राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है वो राज्यसभा के बीच में से ही चुना जाता है, और जब चेयरपर्सन एब्सेंस होता है तो डिप्टी स्पीकर फंक्शनिंग वही करता है जो स्पीकर करता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट powers and function of union parliament. First power we are going to discuss that legislative power. Legislative powers, the parliament is the highest law making body. Number one, you must underline the first point. Parliament is the highest law making body. It makes law. What are the legislative power of your functioning, you can say power or functioning of union parliament. First point, it makes law, okay, on all the subjects enlisted in the union list, concurrent list and residuary subjects. Next, it also make law on the subject given in the state list. Union parliament has right to make the law also if any contradiction or controversy is there. Then Union Parliament has also power to make law on the subjects which are given in state list. As you know that, now we will discuss how a bill make a law. Okay, what is the journey of a law, procedure of making a law. Making a law is started by or introduced by a legislative proposal for the bill other than money bill. Okay, the journey of making of law start from by the introduction a legislature proposal. सबसे पहले ये एक legislature proposal होता है और which can be introduced any house whether लोकसभा और whether राज्यसभा. ओके, मनी बिल को छोड़कर, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अनदर बिल जो होते हैं वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउस इज़ नेसेसरी फॉर पासिंग अ बिल। इंट्रोड्यूस चाहे राज्यसभा में किया जाए चाहे लोकसभा में, लेकिन दोनों हाउस की अप्रूवल बहुत ज़रूरी होती है। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस, अगर बिल को लेकर दोनों हाउस में कुछ कंट्राडिक्शन हो जाते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, मेजॉरिटी वोट इज़ टेकन, देन बिल कैसे पास होता है? मेजॉरिटी वोट इज़ टेकन इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। फिर लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग होती है, वहाँ पर वोटिंग करवाई जाती है। ओके, बिल को पास होने में अगर मेजॉरिटी हो जाती है तो बिल पास हो जाता है, अगर ज़्यादा लोग इस फेवर में नहीं होते तो बिल पास नहीं होता है और लॉ नहीं बन पाता। देयर इज़ नो प्रोविज़न टू होल्ड अ जॉइंट मीटिंग इन द केस ऑफ मनी बिल। ऑन द अदर हैंड, ऑर्डनरी बिल में तो जॉइंट मीटिंग हो जाती है और वोटिंग होती है, लेकिन मनी बिल में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि जॉइंट मीटिंग करवाई जाए। ओके, और अमेंडमेंट बिल में भी कोई जॉइंट मीटिंग नहीं होती। आफ्टर अ बिल इज़ अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस, जब ऑर्डनरी बिल दोनों हाउस के द्वारा अप्रूवल हो जाता है, दैट इट इज़ सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट।
फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है पास होने के लिए, उसके कंसेंट के लिए, उसके सिग्नेचर के लिए। ओके, वंस कंसेंट इज, जब एक बार जो कंसेंट आ जाता है, प्रेसिडेंट की तरफ से कंसेंट आ जाता है, प्रेसिडेंट उस बिल को पास कर देता है, तो इस प्रकार वो बिल लॉ बन जाता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जर्नी ऑफ, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ अ लॉ। गॉट इट। नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, कंट्रोल और ओवर executive. How union parliament control over executive? In the parliament form of democracy, the council of minister is collectively responsible to the Lok Sabha. All the minister or council of minister collectively, okay, not by single, collectively they are responsible, okay, to the Lok Sabha. In case a vote is no confidence is passed against any one member, लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी एक भी मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पास हो जाए, नो कॉन्फिडेंस यानी कि अब उसका लोकसभा का उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा या कोई उसके गलत काम हो जाता है, तो नो कॉन्फिडेंस अगर बिल पास हो जाता है किसी एक मेंबर के अगेंस्ट, सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ता है। बिकॉज दे स्विम टुगेदर, दे सिंक टुगेदर, वो इकट्ठे चलते हैं। तो एक भी अगर गलत काम कर देता है तो उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंट बिल पास हो जाता है, तो सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, सारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। ओके, द पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय मेकिंग आस्किंग क्वेश्चन। और ऐसे में क्या आप कहोगे कि ऐसे कंट्रोल कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि एक मेंबर भी मिस्टेक करने की यानी कि अननोइंगली भी वो मिस्टेक करते नहीं। अगर ऐसे कोई चांसेस होते हैं तो दूसरे उसको मिस्टेक करने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि एक ने मिस्टेक कर दी तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है? बाय आस्किंग क्वेश्चन। कार्यपालिका से वो क्वेश्चन पुट करते रहते हैं, उनके डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग होती रहती है, तो वो अवेयर रहते हैं, मिस्टेक्स नहीं करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर। ओके, एंड द पीरियड व्हेन क्वेश्चन आर आस्क्ड, और लोकसभा में जब क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, कभी लोकसभा का सेशन देखना, ओके, गर्मी की छुट्टियों में जून में, और विंटर और समर ब्रेक में पार्लियामेंट का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर आता होता है, DD1 पर, आप वहाँ से देख सकते हो, ब्रेक में देख सकते हो। ओके, आप समर ब्रेक का तो गया, लेकिन आप विंटर ब्रेक में ज़रूर देखना। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन कब पूछते हैं? ये लोकसभा का जब सेशन होता है तो उसका टाइम पीरियड होता है, द पीरियड व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड, और एक स्पेशल टाइम दिया जाता है जिसको क्वेश्चन आवर के नाम से बुलाया जाता है। इसमें क्वेश्चनिंग की जाती है। सिंस राज्यसभा कैन नॉट पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ओके, सिंस राज्यसभा नो कॉन्फिडेंस नहीं पास कर सकती है, लोकसभा हैज़ मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इस प्रकार लोकसभा का यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा नहीं कर सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर। यूनियन पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर क्या होती है? नंबर फर्स्ट, द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। हर साल जो पार्लियामेंट बजट पास होता है वो यूनियन पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पास किया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही होता है। ओके, नंबर 2, द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स और एनी एक्सपेंडिचर, किसी भी एक्सपेंडिचर को और टैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है इफ़ द प्रपोजल आर नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट किसी नए टैक्स को लगाने या हटाने या घटाने या बढ़ाने में अगर पार्लियामेंट कंसेंट नहीं देती है, पास नहीं करती है, तो कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता और ना ही कोई एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सकता है। ओके, नंबर 3, रिगार्डिंग मनी मैटर, लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा। राज्यसभा की बजाय लोकसभा मनी मैटर में ज़्यादा पावरफुल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं किए जा सकते। नंबर 5, इफ़ राज्यसभा मेक एनी रिकमेंडेशन, अगर राज्यसभा उस बिल में कोई रिकमेंडेशन जब उसके लोकसभा के द्वारा पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है
तो राज्यसभा उसमें कुछ चेंजेस चाहती है, रिकमेंडेशन करना चाहती है, ओके। देन लोकसभा की मर्जी है कि वो उस रिकमेंडेशन को माने या ना माने, वो उसकी मर्जी है, अदरवाइज बिल पास समझा जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स क्या हैं, फाइनेंशियल पावर के हैं। नेक्स्ट पार्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट पार्ट है अमेंडमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन both house enjoy equal power, okay. 1 marks question is there. Regarding money bill, only Lok Sabha is powerful. Regarding amendment bill, both house enjoy equal power. The amendment bill can be introduced any house, किसी भी हाउस में, either house, किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। बट इट मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली, लेकिन इसकी पास जो है दोनों में से किसी हाउस में इंट्रोड्यूस कर दो, लेकिन पास दोनों हाउस के द्वारा सेपरेटली होना चाहिए, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 month, ओके, 3 methods, sorry. The Constitution of India provide the 3 method of amendment of Indian Constitution, about which that we have discussed already in the previous chapter. The procedure of amendment: simple majority, special majority and ratification. By this process the amendment of the constitution can be done. Next part है judicial part. Parliament is empowered to remove the president. Number first, पार्लियामेंट के पास पार होती है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है। नंबर 2, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट को भी रिमूव कर सकती है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, द प्रोसीजर adopted by for this purpose is called impeachment. Next, 4th, a resolution has to be passed by both house of the parliament by special majority. अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को या प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं, जो कि हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। और एक रेजोल्यूशन, ओके, प्रेसिडेंट को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है पार्लियामेंट को, और वो जो प्रोसीजर है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। इम्पीचमेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट किसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, किसी जज को रिमूव करना चाहती है, यानी उसके ऊपर कोई केस होना चाहिए, यानी इम्पीचमेंट, ओके, कि वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा, ओके, या कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे उसके वो ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, फिर ही पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट और या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकती है, और वो प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट। और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होनी चाहिए, ओके। एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 1/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। ये सब कंडीशन क्वालिफाई होने के बाद, ये सब कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट और या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकती है। इलेक्टोरल फंक्शंस, इलेक्टोरल पावर क्या होती हैं पार्लियामेंट की? द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, member of parliament. Okay student, so today we discussed about Rajya Sabha, structure of Rajya Sabha qualification, tenure and election of Rajya Sabha, okay, and after that we discussed about the power and function of Union Parliament. So student, you have to read about Rajya Sabha and power and function of Union Parliament. From Union Parliament there will be 5 marks question in your exam. Got it? Any power can come, any power can be in your exam, okay, like legislature, any one power, financial, and 2 power jointly may be in your examination. Suppose describe the financial and legislature power of Union Parliament. So you must revise the lesson very nicely. Thank you. Have a nice day.